student, yesterday we did combination of resistors. आज जो अपना टॉपिक है that is temperature dependence on resistivity, resistance and resistivity. Temperature dependence अधिक वायर बनाने जा रहे हैं आप in wire we have free electrons drifted from negative to positive because electron has negative charge. It drifts from negative to positive and resistance जो resistance है ये आपस ਦੇ ਵਿੱਚ collision है collide आपस ਦੇ ਵਿੱਚ collide and it collide with positive ion ये positive ion ਨਾਲ collide ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ collide ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ collision ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ resistance create ਹੋਗੀ क्योंकि करंट ਨੂੰ ਰਿਟਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਗ ਜੈਗ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਨਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟਾਊ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ that is m by n e ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ this is resistivity mass number of free electron electronic charge element charge and this is relaxation time ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ resistivity ਹੈ resistivity of the material वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम टाउ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਕੁਇਕ ਦੇ ਵਿਲ ਕੋਲਾਈਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਮੋਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਕੋਲਾਈਡ ਮੋਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼। जिन्ना टेम्परेचर ज़्यादा उन्नी रेजिस्टेंस ज़्यादा। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, कोई टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू की है एट 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस इज आर नॉट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो बढ़ाता T डिग्री सेल्सियस करता फिर रेजिस्टेंस की मान होगी, फिर रेजिस्टेंस मान होगी RT। कुछ भी वैल्यू होगी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। दैट मीन्स चेंज in resistance will depend on two factors. One is ओरिजिनल रेजिस्टेंस, भी पहला रेजिस्टेंस कितनी है, दैट इज R0। दूसरा जो मेजर फैक्टर है इट विल डिपेंड ऑन द राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। दूसरा चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब RT माइनस R0, पहला R0 पे डिपेंड, मान लो दोबारा लिखना है R0, एंड सेकंड फैक्टर चेंज इन टेम्परेचर, पहला 0 डिग्री सेल्सियस थी फिर T डिग्री, दैट मीन दोनों का डिफरेंस T माइनस 0, और कोई T2 हो सकता है, T1 हो सकता है, एंड डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, राइजिंग। दिस इज वन, दिस इज टू, दोनों को करेंगे सम अप, ये बन गया RT माइनस R0 डायरेक्टली टू R0 डेल्टा टी। RT माइनस R0 R0 डेल्टा टी। जो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करांगे इत्थे लगेगा, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव किया इत्थे लग गया अल्फा। अल्फा तो अल्फा इज, ये अल्फा की है, ये सारा जो टॉपिक है ये अल्फा दे ही है। अल्फा का मतलब है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इतों अल्फा की आ गया, पहले अल्फा देख लो RT, ये डिपेंडेंस है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन दिस इज कांस्टेंट अल्फा बाय ये राजे अपने को आ गया अल्फा दी डेफिनेशन। अल्फा इज RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू डेल्टा टी। मतलब अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। का टेम्परेचर बदलने नाल रेजिस्टेंस बढ़ रही है, कि अल्फा कांस्टेंट है, तो RT माइनस R0 बाय R0 डेल्टा टी आ गया अपने को अल्फा का रिलेशन। अल्फा का रिलेशन आ गया, हाले रेजिस्टिविटी की फॉर्म के विच गल करनी है हाले, तो ये RT की आ गया, मतलब जो न्यू रेजिस्टेंस है उसका क्या होगा वैल्यू, दैट इज इंटर जाके प्लस हो जाएगा
इथों आर टी की आ गया आर नॉट by this way we will be able to find new resistance at particular temperature. The RT original resistance, 1 alpha temperature coefficient and delta T. These are the two formulas, one for the temperature coefficient of resistance and one is new resistance at particular temperature. Simple भाषा ये टेम्परेचर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ये अल्फा की यूनिट की गल करनी है, ये भी मार्क्स का क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ अल्फा, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, तो ये तो हो गया कैंसिल, रह गया डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर राइज। एनी यूनिट टेम्परेचर की या तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन, ऊपर जाके चला गया पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री, चाहे पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फा टेम्परेचर। पहला मतलब अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा भी आ गया और डिग्री आप ओम कैंसिल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है अल्फा the special case which is very important question for the 1 or 2 marks. For conductor metals or conductor ਜਿਹੜੀ अल्फा की वैल्यू है ना for metal or conductor अल्फा is positive, अल्फा पॉजिटिव का मतलब एक टर्म पॉजिटिव कहाँ होगी if RT is greater than R naught, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने नाल रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो अल्फा पॉजिटिव। सारे कंडक्टर मेटल्स और कंडक्टर का ਇਹਦਾ मतलब हम ओबे कर रहे हैं अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है फॉर ऑल द मेटल्स एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के विच कंडक्टिविटी नहीं है तो रह गया जो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का ओम्स लॉ ओबे ही नहीं कर रहा, दैट मींस अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा इज नेगेटिव फॉर द मेटल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। जो लास्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है चाहिए की है अल्फा की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल है कि वास्ते पॉजिटिव फॉर द मेटल नेगेटिव फॉर द इंसुलेटर एज वेल एज सेमीकंडक्टर। फोर alloy or alloy you already know combination alloy वास्ते हमेशा अल्फा की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, कितनी स्मॉल
10 raised to power -5 पर डिग्री सेल्सियस। इन्नी स्मॉल अल्फा की वैल्यू अलॉय वास्ते ये अलॉय की जरूरत कितनी राजी जिन्ने भी रेजिस्टेंस कॉइल्स है वायर स्पेशल डिजाइंड जो लैब के यूज हो रही है या कितने भी तो स्पेशल जो रेजिस्टेंस कॉइल्ड है हमेशा वो अलॉय मटीरियल के बने होंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा टैंपरेचर पर डिपेंड ना रहे। ये अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, अल्फा की वैल्यू वेरी स्मॉल फॉर द अलॉय लाइक मैंगनीज, दूसरा कॉन्स्टेंट, नाइक्रोम। तो ये अलॉय है जो कि स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ रेजिस्टेंस कॉइल। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनता है भी रेजिस्टेंस कॉइल बनाने वास्ते किहड़ा मटीरियल यूज किया जाता है? मैंगनीज की कॉन्स्टेंट। अल्फा की वैल्यू स्मॉल के नाल ज़्यादा टैंपरेचर डिपेंडेंस नहीं रहती, तो इसलिए वो लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होंगी है, तो लॉन्ग टाइम वो वर्क करती है, तो प्रॉपर रीडिंग हो गया अल्फा की वैल्यू। तो जी टैंपरेचर डिपेंडेंस आप गल कर रहे थे रेजिस्टेंस, यानी कि टैंपरेचर बढ़न नाल रेजिस्टेंस जो है वो इनक्रीज हो। हुण रेजिस्टिविटी नाल भी कनैक्शन जोड़ांगे थोड़ा जिहा इहदा वो भी देखते हैं जी। जी रेजिस्टेंस ते रेजिस्टिविटी अलग अलग चीज़ है। डायमेंशन के नाल रेजिस्टेंस चेंज होती है बट रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट रहती है। रेजिस्टिविटी मटीरियल दी है ना कि डायमेंशन दी। तो दैट मीन आज एक लिस्ट बनाया सी मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे रिलैक्सेशन टाइम का मतलब रो हो गया रिलैक्सेशन टाइम दे इनवर्स फुल। मैंने दसिया सी भी जिन्ना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन इंक्रीज होगा। अब पॉजिटिव आयन है पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। जो इलैक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन स्ट्राइक करेंगे तो ये इलैक्ट्रॉन आपस में स्ट्राइक करेंगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम है ना रिलैक्सेशन टाइम दे विल मोर फ्रीकुएंट होर तेजी नाल आपस में कोलाइड करेंगे। जिन्नी तेजी नाल कोलाइड करेंगे जिन्नी तेजी नाल कोलाइड करेंगे रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम घट गया, अरे टाइम घट गया जल्दी ज़्यादा टक्कर, रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज ते जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज। तो इस तो पता लगता है भी टैंपरेचर बढ़ाने नाल रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो टैंपरेचर बढ़ाने नाल रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो टैंपरेचर बढ़ाने नाल रेजिस्टेंस तो रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज हो रही है। जी दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल जो नेक्स्ट लैक्चर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, कल कॉम्बीनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किया सी। कल वाला टॉपिक तो अज वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द यूनिट 2।
ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਆਸਕ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।